Hello everyone, I am Salma and I welcome you all to JobKar. In today's video, we will discuss Accenture previous year questions. But before starting the video, I want to say if you find this video knowledgeable and helpful, then do like and share the video. Also subscribe JobKar for latest job notifications. Without any further delay, let's get start the video. The question is, a boat going upstream takes 8 hours 24 minutes to cover a certain distance, while it takes 5 hours to cover fifth 7 of the same distance running downstream. Then what is the ratio of the speed of boat to speed of water current? For this question, let x kilometer per hour is the speed of a boat and y kilometer per hour is the speed of water current. Then according to the question, upstream distance is equal to x minus y, which is speed multiply by time. So time question में क्या है, 8 hours 24 minutes. 24 मिनट्स को आर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2/5. देन 8 2/5 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42/5. सो यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइडेड बाय 5. सो इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1. देन डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस का 5/7 पार्ट आ जाएगा x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 5. जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये जो 7 है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. सो यहाँ पर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई x प्लस वाई. सो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस आ जाएगा x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 42/5 एंड जो डाउन स्ट्रीम है उसका डिस्टेंस आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई x प्लस 5. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. देन इसके बाद इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल रखेंगे बिकॉज डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम रहेगी. सो इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 क्या था, x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 7. जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 42x माइनस 42y इज इक्वल टू आ जाएगा 35x प्लस 35y. यहाँ से 35 इस साइड आकर माइनस हो जाएगा. सो यहाँ पर आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 35 में ये 42y आके प्लस होगा. सो यहाँ पर आ जाएगा 77y. इसके बाद x और y का रेशियो निकालना है. सो यहाँ क्या आया था, 7x इज इक्वल टू 77y. यहाँ से x और y का रेशियो निकालेंगे. सो आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाय 7. सो x और y का जो रेशियो है वो आ जाएगा 11:1. देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 11:1, विच इज ऑप्शन सी. सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 11:1. द क्वेश्चन इज, लेट n be the greatest number that will divide 1305, 4665 and 6905, leaving the same remainder in each case, then sum of the digit n is. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 6905 और 4665 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे. इनका डिफरेंस हो जाएगा 2240. इसके बाद 6905 और 1305 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे. इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 5600. इसके बाद में 4665 और 1305 का डिफरेंस निकालेंगे. सो इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 3360. आफ्टर दैट वी विल फाइंड द HCF ऑफ 2240, 5600 and 3360. So the HCF of 2240, 5600 and 3360 is 1120. So n's value is 1120 and sum of digit in n is 1 plus 1 plus 2 plus 0. So the sum of
digit n is 4. So the right answer is option A. Next question is, the average weight of 8 persons increases by 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg. What might be the weight of the new person? So for this question, total weight increases is 8 multiply 2.5. So 20 kg is total weight which is increases. Then weight of new person is weight of old person which is 65 plus weight increases which is 20. So the right answer is 85. So जो न्यू पर्सन है उसका वेट हो जाएगा 85 kg. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the sum of the present ages of a father and his son is 60 years. 6 years ago, father's age was 5 times the age of the son. After 6th year, son's age will be. Let the age of the son is x. Then according to the question, age of the father is 60 minus x. After it, we will find the age before 6 year. So before 6 year, age of son is x minus 6, and before 6 year, age of father is 60 minus x minus 6. So age of father before 6 year is 54 minus x. After it, according to the question, 6 years ago, father's age was 5 times the age of the son. So father's age is 54 minus x is equal to 5x minus 6. इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 54 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 30. इसके बाद यहाँ आएगा 6x इज इक्वल टू 84. सो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 14 ईयर्स. सो जो सन है उसकी प्रेजेंट एज आएगी 14 ईयर. क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर 6 ईयर्स सन्स एज विल बी. सो 6 ईयर के बाद इसमें 6 और ऐड हो जाएगा. सो इसकी एज कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन एंड रिसीव्ड 1136, 7636 and 11628 votes respectively. What percentage of the total votes did the winning candidate get? So total number of votes polled is 1136 plus 7636 plus 11628. So total number of votes polled are 20,400. After it, percentage of votes winning candidate get is equal to winning candidate votes which is 11,628 divided by total number of vote polled which is 20,400 multiply by 100. सो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 57%. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a certain store, the profit is 320% of the cost. If the cost increases by 25%, what the selling price remains constant approximately, what percentage of the selling price is the profit? Let the cost price is 100. Then after 320% profit of the cost price, the selling price is 100 plus 320. So the selling price is 420. And question says if the cost increases by 25%, so 100 का जब 25% इंक्रीज होगा तो जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा 125. इसका जब प्रॉफिट निकालेंगे सो प्रॉफिट मिलेगा सेलिंग प्राइस विच इज़ 420 माइनस कॉस्ट प्राइस विच इज़ 125. सो प्रॉफिट इज़ 295. आफ्टर इट हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है सेलिंग प्राइस पर. सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रॉफिट विच इज़ 295 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, क्योंकि इन्होंने बोला है सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट निकालना है. सो सेलिंग प्राइस कितना है 420. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. सो वी विल गेट प्रॉफिट परसेंट. सो
इसको सॉल्व करने के बाद लगभग आएगा 70.238 which is approximately 70%. So right answer is option B. Next question is, if the cost of X meters of wire is D rupees, then what is the cost of Y meters of wire at the same rate? So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ X meters wire is equal to D, then cost of 1 meter wire is equal to D upon X. After it क्वेश्चन सेज कॉस्ट ऑफ वाई मीटर्स ऑफ वायर. सो हमें यहाँ पर वाई मीटर वायर की कॉस्ट बतानी है. सो यहाँ पर वाई इज इक्वल टू आ जाएगा डी अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई. सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज वाई डी अपॉन एक्स, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a towel when bleached was found to have lost 20% of its length and 10% of its breadth. The percentage of decreases in area is. Let the length and the width of the towel before bleaching is 100 meter. Then the area of towel before bleaching is 100 multiply 100. So the area of towel before bleaching is 10,000. After bleaching, it lost 20% length. Then the length of the towel is 80, and after bleaching it lost 10% of its width. Then the width of the towel is 90. So the area of the towel after bleaching is 80 multiply 90. So the area of the towel after bleaching is 7,200. Area decreases in towel is 10,000 minus 7,200. So 2,800 is area decreases in towel. After it, percentage of decreases in area is equal to decrease in area divided by area before bleaching multiply by 100. So decrease in area is 2,800 divided by 10,000 which is area before bleaching multiply by 100. सो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 28%. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. द परसेंटेज ऑफ डिक्रीजेज इन एरिया इज 28%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ शॉपकीपर बॉट 30 kg ऑफ राइस एट ₹75 per kg एंड 20 kg ऑफ राइस द रेट ऑफ ₹70 per kg. इफ ही मिक्सड द टू ब्रांड ऑफ राइस एंड सोल्ड द मिक्सचर एट ₹80 per kg, फाइंड हिज गेन. 30 kg राइस का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 30. सो यहाँ से जो 30 किलोग्राम चावल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2,250 रुपीज़. देन इसके बाद शॉपकीपर दूसरे टाइप के राइस खरीदता है 20 kg ऑफ राइस एट रेट ऑफ 70 per kg. सो यहाँ पर 20 kg राइस का प्राइस क्या हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई 20. सो यहाँ से 20 kg राइस का प्राइस आ जाएगा 1,400. देन इसके बाद टोटल राइस कितना खरीदा 30 + 20. सो 50 kg राइस को शॉपकीपर ने खरीदा है 2,250 + 1,400. सो यहाँ से 50 kg राइस का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 2,250 + 1,400. सो यहाँ से जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3,650 रुपी. देन इसने 1 kg राइस को 80 रुपी में सेल किया. दैट मीन्स इसने 50 kg राइस को कितने में सेल किया होगा 50 मल्टीप्लाई 80. सो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4,000. सो इसके बाद शॉपकीपर का गेन बताना है. सो इसने चावल खरीदे 3,650 के एंड बेच दिए 4,000 के. सो इसका गेन कितना हुआ 4,000 माइनस 3,650. सो इसको 350 रुपी का गेन हुआ. सो योर आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 4 women and 5 men working together can do 3 times the work done by 2 women and 1 man together. Calculate the work of a man to that a woman. सो यहाँ पर 4 women एंड 5 men साथ में काम करते हैं और ये कितना काम करते हैं 3 times द वर्क डन बाय 2 women एंड 1 man. सो इसको इक्वल में रखेंगे. इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 4W + 5M
यहाँ W से विमेन है और M फॉर मैन है, इज इक्वल टू 3 × 2 होगा तो यहाँ आ जाएगा 6 विमेन प्लस 3 मैन। देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5M से 3M जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2M इज इक्वल टू 6W में से 4W माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2W। सो यहाँ पर मैन और विमेन का जो रेशियो है वो आ जाएगा 2:2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1:1। सो मैन और जो विमेन है उसका रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज √456 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 142 माइनस 11 इज इक्वल टू। सो सबसे पहले यहाँ पर वॉड मास लगाएंगे। वॉड मास में सबसे पहले डिवीज़न को सॉल्व किया जाएगा। जब यहाँ पे ये 456 डिवाइडेड बाय 12 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 38 प्लस आ जाएगा 142 माइनस आ जाएगा 11। इसमें 142 में से 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी 38 प्लस 131। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 169 और इसको जब अंडर रूट से बाहर लाया जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/5 ऑफ 1/2 ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 216। सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ 1/5 ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, सो यहाँ लगाएंगे मल्टीप्लाई। इसके बाद 1/2 ऑफ की जगह पर फिर से मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 216। इसके बाद 1/5 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 6/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 को जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू आ जाएगा 216। इसके बाद क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू आ जाएगा 216 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 3। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 72। देन इसके बाद इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। देन इसके बाद 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 किया जाएगा सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 120। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। The question is, a boat takes total 16 hours for traveling downstream for point A to point B and coming back point C, which is somewhere between A and B. If the speed of the boat in still water is 9 km/h and the rate of stream is 6 km/h, then what is the distance between A and C? So, question में स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर दी गई है 9 km/h एंड रेट ऑफ स्ट्रीम दिया गया है 6 km/h। देन फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आफ्टर दैट लेट द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज x किलोमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन B एंड C इज y किलोमीटर। Then according to the question, time which is 16 hour is equal to distance. So A and B के बीच की डिस्टेंस है x किलोमीटर एंड जो इसकी स्पीड है वो हो जाएगी 9 + 6 डाउन स्ट्रीम में। इसके बाद प्लस में आ जाएगा A एंड C के बीच की डिस्टेंस है y डिवाइडेड बाय 9 - 6। सो ये अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड हो जाएगी। देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16 इज इक्वल टू x/15 प्लस y/3। आफ्टर इट 16 इज इक्वल टू x प्लस 5y डिवाइडेड बाय 15। सो वी कैन से we cannot be determined the distance between A and C. So right answer will be option D. Next question is 5 men and 10 boys can do a piece of work in 30 days and 8 men and 12 boys can do the work in 20 days. Then the ratio of daily work done by a man to that of a boy. सो क्वेश्चन में दिया है 5 मैन, यहाँ पर M फॉर मैन लूँगी मैं और B फॉर बॉयज़। सो यहाँ पर 5 मैन एंड 10 बॉयज़ मिलकर किसी वर्क को 30 डेज में करते हैं एंड सेम वर्क को 8 मैन एंड
12 बॉयज़ मिलकर 20 डेज में करते हैं, दैट मीन्स दोनों कंडीशंस में वर्क इक्वल होगा। देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 150 m प्लस आ जाएगा 300 b इज इक्वल टू आ जाएगा 160 m प्लस आ जाएगा 240 b। यहाँ से m को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 150 माइनस 160, सो यहाँ आ जाएगा -10 m इज इक्वल टू ये जो 300 b है ये इस तरफ आकर माइनस होगा, सो यहाँ पर आ जाएगा 240 माइनस 300, सो यहाँ पर आ जाएगा -60 b। देन इसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ m और b का रेशियो आ जाएगा 60:10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6:1। सो द रेशियो ऑफ डेली वर्क डन बाय अ मैन टू दैट बॉय इज 6:1। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, 10, 8, 9, 11.5 इसका नेक्स्ट टर्म आपको बताना है। सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करें और इसमें +1 करें तो इसका हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा जो कि है 10। 18 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे सो यहाँ आएगा 9, 9 में +1 कर देंगे तो इसका सेकंड टर्म है जो 10 वो मिल जाएगा। इसके बाद 10 डिवाइडेड बाय 2 +3 करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 8। इसके बाद क्या होगा 8 डिवाइडेड बाय 2 +5, सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 9। नेक्स्ट क्या होगा 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस करेंगे 7, सो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 11.5। देन इसके बाद 11.5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9 करेंगे सो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 14.75। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14.75। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Manoj can do a work in 20 days while Chandu can do the same work in 25 days. They started the work jointly. A few days later, Suresh also joined them and thus all of them completed the whole work in 10 days. All of them were paid total rupees 1000. What is the share of Suresh? मनोज एक वर्क को 20 डेज में करता है, सेम वर्क को चंदू 25 डेज में करता है एंड तीनों मिलकर सेम वर्क को 10 डेज में करते हैं। सो यहाँ पर मनोज, चंदू एंड सुरेश जो सेम वर्क है उसको 10 डेज में करते हैं। देन इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, सो इसका एलसीएम आएगा 100। सो यहाँ पर जो 100 है वो मानेंगे टोटल वर्क है, 100 डिवाइडेड बाय 20 होगा तो यहाँ पर आएगा 5। सो यहाँ पर ये जो 5 है वो होगा वर्क डन बाय मनोज इन 1 डे। देन इसके बाद 100 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे सो यहाँ पर 4 आएगा और ये 4 हो जाएगा चंदू का एक दिन का काम। देन इसके बाद 100 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे सो यहाँ पर आएगा 10 जो कि हो जाएगा मनोज, चंदू एंड सुरेश का एक दिन का काम। सो यहाँ पर मनोज, चंदू एंड सुरेश का एक दिन का काम कितना है 10, जिसमें से 5 काम कौन कर रहा है मनोज कर रहा है एंड 4 कौन कर रहा है चंदू कर रहा है। सो यहाँ पर 10 में से 9 वर्क कौन कर रहा है मनोज एंड चंदू, दैट मीन्स सुरेश ने कितना वर्क किया होगा, सो सुरेश का वर्क आ जाएगा 1। सो यहाँ से मनोज, चंदू और जो सुरेश हैं उनके वर्क का रेशियो क्या आ जाएगा 5:4:1। देन इसके बाद जो जितना वर्क करेगा उसको उतना पे किया जाएगा। सो मनोज ने किया 5 वर्क, चंदू ने किया 4 एंड जो सुरेश है उसने किया 1 वर्क। सो इनको इसी रेशियो में जो मनी है उसको पे कर दिया जाएगा। सो टोटल मनी कितनी है 1000। इन तीनों का अगर रेशियो ऐड करें तो कितना आ जाएगा 10। सो यहाँ करेंगे डिवाइडेड बाय 10 एंड शेयर किसका बताना है, हमें शेयर बताना है सुरेश का। सो सुरेश का रेशियो कितना है 1 है, सो यहाँ मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरेश का जो शेयर है वो आ जाएगा 100 रुपी। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज She has married 8 years ago. Today her age is 9/7 time to that time of marriage. At present his son's age is 1/6 of her age. What was her son's age 3 years ago?
Let assume her age on his marriage is X, then her present age is X plus 8. Then according to the question, today her age is 9/7 time of that time of marriage. That means X plus 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 9/7 ऑफ x। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7x प्लस 56 इज इक्वल टू 9x। सो यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू आ जाएगा 28, जो कि 8 ईयर्स पहले की उसकी एज है। देन उसकी प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी 28 प्लस 8। सो उसकी जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी 28 प्लस 8। सो यहाँ से क्या मिलेगा 36, जो कि उसकी प्रेजेंट एज है। देन इसका जो बेटा है उसकी एज है 1/6 ऑफ हर एज। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सन की एज आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय 6। सो सन की प्रेजेंट एज आ जाएगी 6 ईयर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है सन्स एज 3 ईयर्स एगो। सो 3 ईयर्स एगो इसकी एज कितनी हो जाएगी 6 माइनस 3। सो आपका राइट आंसर क्या होगा 3 ईयर्स। सॉरी, यहाँ बाय मिस्टेक आंसर रॉन्ग टाइप हो गया है। सो आप इसको राइट आंसर कर लेंगे 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अलॉय कंटेन्स ब्रास, आयरन एंड जिंक इन द रेशियो 2:3:1 एंड अनदर कंटेन्स iron, zinc and lead in the ratio 5:4:3. If equal weights of both alloy are melted together to form a third alloy, then what will be the weight of lead per kg in new alloy? So जो फर्स्ट अलॉय है उसमें ब्रास, आयरन और जो जिंक है उसका रेशियो क्या है 2:3:1 एंड जो सेकेंड अलॉय है उसमें आयरन, जिंक एंड लेड का रेशियो कितना है 5:4:3। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों जो अलॉय हैं वो इक्वल वेट के हैं। यहाँ पर अगर इनके रेशियो को हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा, इसका एडिशन करेंगे तो आएगा 6 एंड इसको ऐड करेंगे तो आएगा 12। दैट मीन्स ये दोनों सेम वेट के नहीं हैं एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों अलॉय सेम वेट के होने चाहिए। सो इसको सेम बनाने के लिए ऊपर वाला जो रेशियो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर जो रेशियो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो ब्रास का रेशियो है वो हो जाएगा 4, जो आयरन का रेशियो है वो हो जाएगा 6 एंड जो जिंक का रेशियो है वो हो जाएगा 2। सो यहाँ पर दोनों अलॉय इक्वल वेट के हो जाएंगे। इसके बाद इसको अगर ऐड करें तो यहाँ पर क्या आएगा 5 + 4 सो आ जाएगा 9, 4 + 6 सो यहाँ पर आ जाएगा 10 एंड 3 + 2 सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। देन इसको अगर टोटल करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 एंड इसमें से जो लेड है वो कितना है 3। सो यहाँ पर वेट ऑफ लेड पर केजी इन न्यू अलॉय आ जाएगा 3/24। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/8। So the answer is option C. Next question is a milkman mixes 6 liters of free tap water with 20 liters of pure milk. If the cost of pure milk is rupees 28 per liter, the percent profit of the milkman when he sells all the mixture at the cost price is। यहाँ से 20 kg प्योर मिल्क का जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा 28 × 20। सो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है उसकी वैल्यू आ जाएगी 560। देन आफ्टर मिक्सेस 6 लीटर ऑफ वाटर इन मिल्क, मिल्क क्वांटिटी इज 20 + 6 बिकॉज इसने 20 लीटर जो प्योर मिल्क है उसमें 6 लीटर पानी को मिलाया। दैट मीन्स जो मिक्सचर है वो कितना हो जाएगा 26 kg हो जाएगा। इसके बाद मिल्कमैन ने जो मिक्सचर है उसको 28 पर केजी के हिसाब से सेल किया है। सो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा 26 × 28। सो जो मिक्सचर है उसका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 728। यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इज 728 एंड कॉस्ट प्राइस इज 560। सो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 168। देन इसके बाद निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है,
प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस कितना है 560 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30। सो प्रॉफिट परसेंट विल बी 30। देन इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस कितना आया था 560 आया था। देन इसके बाद इसने जो 6 लीटर टैप वाटर मिलाया है ना, उसका प्रॉफिट सीधे निकाल लेंगे, क्योंकि इसने 28 पर केजी के हिसाब से जो 6 लीटर वाटर है उसको भी सेल कर दिया। सो इस पे प्रॉफिट कितना होगा, 6 लीटर का जो सेल किया है उसी के बराबर प्रॉफिट होगा। सो इसका प्रॉफिट यहाँ से आ जाएगा 168। देन इसके बाद सेम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, सो विच प्रॉफिट इज 168 कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस इज 560 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। देन इसको सॉल्व करने के बाद आपको सेम यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 30%। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, 32, 60, 122, 240। देन नेक्स्ट टर्म आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। सो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। देन जो सेकेंड टर्म है 32, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। देन अगेन जो थर्ड टर्म है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 122। जो फोर्थ टर्म है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 4 माइनस करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 240। देन इसके बाद जो 240 है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 482। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 482। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cost price of 80 notebooks is equal to the selling price of 65 notebooks, then gain or loss percent is cost price of 80 notebook is equal to selling price of 65 notebooks। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है उसका रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 65/80। देन इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13 डिवाइडेड बाय 16। इसको 5 से डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 13 डिवाइडेड बाय 16। देन गेन इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो गेन यहाँ से क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा 16 माइनस 13। सो गेन मिलेगा 3। देन गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ से गेन कितना आया 3 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 13 है, एंड परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 23.07% विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 23%। सो राइट आंसर विल बी 23%। Nagarjuna lends ₹30,000 of 2 of his friends. He gives ₹50,000 to the first at 6% per annum simple interest. He wants to make a profit of 10%. On the whole, the simple interest rate at which he should lend the remaining sum of money to the second friend is। यहाँ पर नागार्जुना ने 15,000 मनी को 6% पर एनम के हिसाब से 1 ईयर के लिए अपने एक फ्रेंड को दिया है। सो यहाँ पर आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस बाकी का जो 15,000 रुपी है इसको किस रेट पर दिया है ये हमें बताना है। 1 ईयर के लिए इसको भी दिया है, डिवाइडेड बाय करेंगे 100 एंड ये करने से इसको टोटल जो मनी है 30,000 इसके ऊपर इसको 10% का प्रॉफिट हुआ है। सो यहाँ पर आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100। देन यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 20 से 20 जाएगा, यहाँ 20 से ये 20 जाएगा, सेम यहाँ पर ये 20 जाएगा। इसके बाद यहाँ आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 900 प्लस आ जाएगा 150R इज इक्वल टू आ जाएगा 3000। देन इसके बाद 150R
इज इक्वल टू आ जाएगा 3000 माइनस 900। इसके बाद 150 आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2100। देन इसके बाद आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2100 डिवाइडेड बाय 150। देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 14%। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a boat takes 128 minutes less to travel to 48 km downstream than to travel the same distance upstream if the speed of the stream is 3 km per hour, then speed of boat in still water is। सो इस क्वेश्चन के लिए लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पर स्पीड इन डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम निकालेंगे। सो स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सो यहाँ पर अप स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगा, x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। देन इसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। सो फॉर्मूला क्या था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर 128 मिनट को जब आर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2/8/60 आर इज इक्वल टू आ जाएगा, डिस्टेंस है 48 किलोमीटर पर आवर। ये एक बार ही जाएगा अप स्ट्रीम। सो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या थी, x माइनस 3 एंड इनके जो टाइम का डिफरेंस है वो दिया है 128 मिनट। सो यहाँ पर आएगा -48 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। देन इसके बाद 28/60 को सॉल्व करेंगे, ये 4 से जाएगा तो यहाँ आएगा 215। देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 15 2 ज़ा 30 प्लस 2। सो यहाँ आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 48 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ आएगा 1/x माइनस 3 माइनस आ जाएगा 1/x प्लस 3। देन 32 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 48। यहाँ पर एलसीएम आएगा दोनों का, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 माइनस आ जाएगा x माइनस 3। देन 32 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 48। यहाँ x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9। देन यहाँ से x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 32। देन इसके बाद 32 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 एंड यहाँ आ जाएगा 12। इसके बाद इसको फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, ये 3 बार जाएगा। देन इसके बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 15। सो जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 135। देन इसके बाद x स्क्वायर इज इक्वल टू 135 प्लस आएगा 9। सो यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 12। सो स्पीड ऑफ बोट इन वाटर इज आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36% of 945 minus 26% of 765 प्लस 17.7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर 36% का मीनिंग क्या होगा, 36 डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। सो यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे 945 माइनस आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई 765 प्लस 17.7। देन इसके बाद ये 5 से जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 189। देन इसके बाद इसको 2 से और डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 18। इसके बाद ये जो 100 है ये जाएगा 5 से, सो यहाँ पर आ जाएगा 20
एंड जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 153। देन इसके बाद यहाँ आ जाएगा 10 एंड यहाँ आ जाएगा 13। इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 189 डिवाइडेड बाय 10 माइनस आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 153 डिवाइडेड बाय 10 और प्लस आ जाएगा 17.7। इसके बाद 18 और 189 का मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ आ जाएगा 3402 डिवाइडेड बाय 10 माइनस आ जाएगा 13 और 153 का मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ आ जाएगा 1989 डिवाइडेड बाय 10 प्लस आ जाएगा 17.7। देन यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा 10, यहाँ आएगा 3402 माइनस 1989 प्लस आ जाएगा 177। देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1590 डिवाइडेड बाय 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 159। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a certain number of men take 45 days to complete work. If there are 10 men less than, they will take 60 days to complete the work. Find the original number of men. So इस क्वेश्चन के लिए let assume the total number of men is equal to x. Then ये जो x men है ये किसी वर्क को 45 डेज में करते हैं। देन जो सेम वर्क है उसको x से 10 लोग कम कितने डेज में पूरा करते हैं, 60 डेज में कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 45x इज इक्वल टू 60x माइनस आ जाएगा 600। देन इसके बाद ये जो 60 है इस साइड आके माइनस होगा, सो यहाँ आ जाएगा -15x इज इक्वल टू आ जाएगा -600। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू आएगा 600 डिवाइडेड बाय 15 और जब इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 40। सो द टोटल नंबर ऑफ मैन इज 40। योर आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज while calculating the weight of a group of men, the weight of 63 kg of one of the member was mistakenly written as 83 kg. Due to this, the average of the weights increased by half kg. What is the number of men in the group? Let the number of men in group is x. Then according to the question, the weight of 63 kg of one of the member was mistakenly written as 83 kg. Due to this, the average of the weights increased by half kg. सो जो x का हाफ kg है वो वजन बढ़ गया किसकी वजह से, जो 63 है उसके जगह पर क्या लिख दिया गया 83। सो यहाँ करेंगे 83 माइनस 63 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1/2। देन इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 20। सो x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 40। सो द नंबर ऑफ मैन इन द ग्रुप आ जाएगा 40। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ग्रुप of 8 boys, 2 men aged at 21 and 23 were replaced 2 new boys. Due to this, the average cost of the group increased by 2 years. What is the average age of the 2 new boys? According to the question, average of 8 boys increased by 2. That means the total age of boys increased by 8 multiply 2. सो यहाँ पर आ जाएगा टोटल जो वेट होगा वो 16 kg इंक्रीज हो जाएगा। देन इसके बाद सम ऑफ एजेस ऑफ 2 न्यू बॉयज इज 21 प्लस आ जाएगा 23 एंड जो 16 इंक्रीज हो रहा है उस वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पर जो 2 नए लड़के आए हैं उनकी जो टोटल एज है वो हो जाएगी 60 kg। देन एवरेज ऑफ 2 बॉयज आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2। सो आंसर आ जाएगा 30। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवेंस प्रेजेंट एज इज 3 times his son's present age and 4/5 of his father's present age. The average of the present ages of all of them is 62 years.
What is the difference between the Revan's son's present age and Revan's father's present age? So let assume the present age of Revan's son is x, then Revan's age is 3x, बिकॉज क्वेश्चन में है कि रेवेंथ का जो सन है उसका 3 टाइम कौन है, रेवेंथ है। सो यहाँ पर रेवेंथ की जो एज है वो हो जाएगी 3x एंड उसके जो सन की एज है वो हो जाएगी x। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4/5 ऑफ रेवेंथ्स फादर एज इज इक्वल टू रेवेंथ्स एज। सो यहाँ से रेवेंथ्स के जो फादर की एज है वो कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 5x डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ से इनके जो फादर हैं उनकी एज आ जाएगी 15x डिवाइडेड बाय 4। देन रेशियो ऑफ रेवेंथ सन, रेवेंथ एंड हिज फादर एज इज x रेशियो 3x रेशियो 15x डिवाइडेड बाय 4। इसके बाद 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। सो यहाँ क्या आ जाएगा, 4x रेशियो 12x रेशियो 15x, ये हो जाएगा रेवेंथ सन, रेवेंथ एंड रेवेंथ फादर एज का रेशियो। देन एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ऑल है 62 ईयर्स। सो इनका जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो क्या था, 4x प्लस था 12x प्लस था 15x इज इक्वल टू आ जाएगा 62 मल्टीप्लाई बाय 3, बिकॉज 62 इन तीनों की एज का एवरेज है। सो यहाँ पर 62 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो इनकी जो प्रेजेंट एज है उनका एडिशन मिल जाएगा। देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4x प्लस 12x प्लस 15x। सो इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 31x इज इक्वल टू 62 मल्टीप्लाई 3। देन x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 62 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 31। सो इसको सॉल्व करने पर x की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 6। देन जो सन है उसकी एज क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई x। सो x की वैल्यू 6 है। सो जो सन है उसकी एज आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 6, सो 24 ईयर्स आ जाएगी सन की एज। एंड जो फादर हैं उनकी एज थी 15x। सो रेवेंथ के जो फादर हैं उनकी एज आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई 6। सो यहाँ से जो रेवेंथ के फादर हैं उनकी एज आ जाएगी 90 ईयर्स। एंड डिफरेंस बिटवीन द रेवेंथ सन्स प्रेजेंट एज एंड रेवेंथ फादर्स प्रेजेंट एज इज 90 माइनस 24। सो यहाँ पर 90 माइनस 24 करेंगे तो इनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस मिल जाएगा 66 ईयर्स। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the respective ratio between the present age of Mani and Dheeraj is x ratio 42. Mani is 8 years younger than Murali. Murali's age after 8 years will be 33 years. The difference between Dheeraj and Mani's age is same as the present age of Murali. What is the value of x? सो यहाँ पर मुरालीज एज आफ्टर 8 ईयर्स विल बी 33। सो यहाँ पर जो मुराली की प्रेजेंट एज है वो आ जाएगी 33 माइनस 8। सो यहाँ से मिलेगा 25 ईयर्स और ये हो जाएगी मुराली की प्रेजेंट एज। देन मनी इज 8 ईयर यंगर देन मुराली। सो जो मनी की एज है वो क्या आ जाएगी 25 माइनस 8। सो यहाँ से मनी की एज मिल जाएगी 17 ईयर्स। देन इसके बाद द डिफरेंस बिटवीन धीरज एंड मनीष एज इज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ मुराली। सो सबसे पहले यहाँ पर 42 और 17 का डिफरेंस देखते हैं। अगर ये डिफरेंस 25 हुआ तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 17। सो यहाँ पर 42 माइनस करेंगे 17। सो यहाँ से आएगा 25। दैट मीन्स द एज ऑफ मनी आ जाएगी 17 ईयर। एंड मनी और जो धीरज है उसकी एज का रेशियो दिया हुआ है x रेशियो 45। सो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 36। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर if the ratio between the digits of the number is 1:2?
So since the number is greater than the number obtained on reversing the digits, so the tens digit is greater than the unit digit, then according to the given ratio, let the tens digit is 2x and the unit digit is x. Then according to the question, 10 multiply 2x plus x minus 10x plus 2x is equal to 36, because क्वेश्चन में इन्होंने दिया है द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 36। सो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है डिजिट इंटरचेंज करने के बाद 36 आएगा। देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20x प्लस एक्स माइनस 12x इज इक्वल टू 36। सो यहाँ से आएगा 21x माइनस 12x इज इक्वल टू 36x। 9x इज इक्वल टू आ जाएगा 36। देन इसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय 9। सो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4। देन द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x प्लस एक्स माइनस आ जाएगा 2x माइनस एक्स। सो यहाँ पर 2x की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस आ जाएगा 4 माइनस आ जाएगा यहाँ से 8 माइनस 4। सो यहाँ पर 12 माइनस 4 आ जाएगा। सो इनकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच ऑफ द क्वेश्चन given below consist of a statement and or a question and two statements numbered 1 and 2 given below. You have to decide whether the data provided in the statements is are sufficient to answer the given question. Read the both statements and give answer A. If the data in statement 1 alone are sufficient to answer the question, while the data in statement 2 alone are not sufficient to answer the question, give answer V. If the data in statement 2 alone are sufficient to answer the question, while the data in statement 1 alone are not sufficient to answer the question, give answer C. If the data either in statement 1 or in statement 2 alone are sufficient to answer the question, give answer 4. If the data even in both statements 1 and 2 together are not sufficient to answer the question, and give answer E. If the data in both statements 1 and 2 together are necessary to answer the question. The question is, what is the capacity of a cylindrical tank? Statement 1 is radius of the base is half of its height, which is 28 meters. And statement 2 is area of the base is 616 square meters and its height is 28 meters. सो सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट 1 को सॉल्व करें। सो रेडियस ऑफ द बेस इज हाफ ऑफ इट्स हाइट विथ 28 मीटर। सो यहाँ पर हाइट दी गई है 28 मीटर्स, देन इसका हाफ क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। सो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। देन कैपेसिटी ऑफ टैंक आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच क्यूब मीटर। सो यहाँ से पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 14 स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। देन इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 196 मल्टीप्लाई 28। तो यहाँ से 7 से 28 जाएगा 4 बारी। देन इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 17,248 क्यूब मीटर। सो यहाँ से सिलिंड्रिकल टैंक का जो कैपेसिटी है वो निकाल सकते हैं, वो कितनी आएगी 17,248 क्यूब मीटर। देन इसके बाद स्टेटमेंट 2 को सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ द बेस इज 616 स्क्वायर मीटर एंड इट्स हाइट इज 28 मीटर। सो एरिया ऑफ टैंक है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे के रखी है 616 स्क्वायर मीटर एंड हाइट का जो वैल्यू है वो दे के रखा है 28 मीटर। यहाँ से
कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या आ जाएगी, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो यहाँ पर आ जाएगा 616 मल्टीप्लाई 28। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 17,248 क्यूब मीटर। सो वी कैन से either statement 1 or statement 2 alone sufficient to answer the question. So your answer will be option C. Next question is, in 100-meter race, A covers the distance in 36 seconds and B in 45 seconds. In this race, A beats B by. So यहाँ पर difference between A and B's time क्या आ जाएगा, 45 minus 36। तो यहाँ से इन दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है वो आ जाएगा 9 सेकेंड। एंड जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर है। सो यहाँ से स्पीड ऑफ बी कितनी आएगी, 100 डिवाइडेड बाय 45, बिकॉज डिस्टेंस 100 मीटर का है एंड बी ने इसको कवर करने में 45 सेकेंड्स लिए हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 20/9 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा स्पीड ऑफ बी। सो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 9 सेकेंड क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 9। सो यहाँ पर 20 मीटर का जो डिस्टेंस होगा वो बी ने कवर नहीं किया होगा। दैट मीन्स ए ने बी को 20 मीटर से बीट किया है। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a 6% stock yields 8%. The market value of the stock is, let the investment is 100 for an income of ₹8. Then for an income of ₹1 investment आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 8। एंड हमें बताना क्या है, 6% स्टॉक का वैल्यू बताना है। सो यहाँ पर 1% का वैल्यू कितना आया, 100 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से 6% का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6। देन इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 75। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ you like the video, give it a thumbs up. Also subscribe Jobkar for latest job notifications. Thank you.